میں تو ذاتی طور پہ بارہا کہہ چکا ہوں، مذاکرات ہونے چاہیے، ہر سٹیج پہ ہونے چاہیے، اور کمپریہنسو مذاکرات ہونے چاہیے، انکنڈیشنل مذاکرات ہونے چاہیے، تاکہ اگر بات آگے بڑھتی ہے پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل مستقل ڈھونڈنا بڑا لازم ہوتا ہے جمہوریت کے لیے اور سب تحریک انصاف کے موقف میں لچک، سیاسی مسائل کا حل بیٹھک سے ہی ممکن۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اب ملک کو بہتری کی طرف بڑھانا چاہیے، مذاکرات کے لیے کوئی شرط نہیں، مطالبات سامنے رکھے۔ دنیا بھر میں احتجاج کے دوران گولی نہیں چلتی، یہاں ابھی مظاہرین بیٹھے ہی نہیں تھے اور شیلنگ شروع کر دی گئی۔ پی ٹی آئی یو ٹرن لینے میں ماہر قرار۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا تھا، سنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی، یہ بھی ایک یو ٹرن ہے۔ پی ٹی آئی کی مذاکرات سے پہلے ہی شرائط سمجھ سے بالاتر ہے، کہتے ہیں ہمارے بندے چھوڑے جائیں، بانی پی ٹی آئی کو چھوڑا جائے۔ کہا ہم جمہوری لوگ ہیں، ملکی مفاد میں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ متحدہ پاکستان کا پارلیمنٹ پر عدم اعتماد کا اظہار۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ہمیں ان ایوانوں پر کوئی اعتبار نہیں، نہ جانے کب ناراض ہو جائے ہم حکومت سے۔ کراچی صرف چل نہیں رہا بلکہ پاکستان کو چلا رہا ہے، جب جب شہر قائد کو نظر انداز کیا گیا ملک پیچھے چلا گیا۔ ملٹری عدالتوں میں ہمارے مقدمات چلے تو غلط ہوں گے۔ سیاسی جماعت کے لیڈر کے خلاف بات میں مانتا ہوں، لیکن ہمیں ان اداروں کے لیے بھی بات نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مجھے آپ کے مستقبل کی فکر ہے۔ گورنر سندھ پی ٹی آئی پر برس پڑے۔ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ 50,000 گھر دینے کا وعدہ کرنے والے نے ہمیں آئی ایم ایف کی گرفت میں جکڑ دیا۔ جس ملک کی ایئر لائن ہم نے بنائی آج وہ پاکستانیوں کو ویزا نہیں دے رہا۔ حالات بدلنے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے طلبہ قیادت کو نکالنا ہوگا۔ کراچی میں نجی یونیورسٹی کے کنوکیشن سے خطاب۔ بی چوک احتجاج میں شہید اور لاپتہ کارکنان کے معاملے پر پی ٹی آئی کی درخواست۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 23 دسمبر کو کیس ابتدائی بحث کے لیے مقرر کر دیا۔ آئندہ سماعت پر شکایت کنندہ بیرسٹر گوہر کو حاضر ہونے کا حکم۔ درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف، محسن نقوی، عطا اللہ تارڑ، خواجہ آصف کو فریق بنایا گیا۔ پی ٹی آئی احتجاج میں گرفتار 32 ملزمان مقدمات سے ڈسچارج۔ پولیس شناخت کرنے میں ناکام رہی۔ ملزمان اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ 9 مئی کو کنٹینر جلانے کے مقدمے میں پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 8 روپوش پی ٹی آئی رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا۔ میاں اسلم اقبال، حماد اظہر اور مراد سعید دیگر شامل۔ دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ 9 مئی واقعات اور جی ایچ کیو حملہ کیس میں اہم پیش رفت۔ مسلسل غیر حاضری پر علی امین گنڈا پور سمیت 23 ملزمان کی ضمانت منسوخ کرانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق استغاثہ کی جانب سے درخواست تیار، آئندہ سماعت پر درخواست دائر کیے جانے کا امکان۔ آپ کا 12 دسمبر کو لکھا گیا خط مجھے موصول ہوا۔ آپ کے علم میں ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا۔ مزید لکھا کہ چیف جسٹس نے رولز بنانے کے لیے میری سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی۔ آپ کی جانب سے تجویز کردہ سفارشات پہلے ہی ڈرافٹ میں شامل کی جا چکی ہیں۔ مجوزہ ڈرافٹ میں آپ کے خط سے پہلے ہی آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 17 دسمبر کو بلائے جانے کا قوی امکان۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر آفس کی جانب سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اجلاس کے حوالے سے اہم احکامات جاری کر دیے گئے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے مشترکہ اجلاس کی تیاریاں بھی شروع کر دی۔ پاک چین دوستی سمندر سے گہری۔ مریم نواز کی آج بھی اہم مصروفیات۔ گوانگزو کے وائس گورنر ینگ گوزی سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ دونوں ملک ایک دوسرے سے اخلاص کی ڈوری میں بندھے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پنجاب کے عوام دورہ چین کے ثمرات سے پوری طرح مستفید ہوں گے۔ سندھ میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ چین سے سرمایہ کار سندھ آ کر
काम कर रहे हैं। थर में पहली भी अच्छी सरमायाकारी हुई, अब ज्यादा मंसूबे लगेंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चीन से बहुत सी सनतें यहाँ मुंतकिल हो रही हैं। महंगाई की शरह जिस तेजी से बढ़ रही थी उसमें अब कमी आई। मोदी सरकार की एक और महाज पर पसपाई, पाकिस्तान की तमाम शराइत कबूल, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं, फ्यूजन फार्मूले के मुताबिक होगी। आईसीसी की तस्दीक बाज़ाब्ता ऐलान प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में होंगे। पीसीबी और बीसीसीआई भी रजामंद। पाकिस्तान टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। भारतीय मीडिया का दावा, T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कोलंबो में होगा। एक और व्हाइट वॉश का खतरा, ग्रीन शर्ट्स के लिए नया इम्तिहान। सेंचुरियन में दूसरा T20 मैच, जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 60 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। रज़ा हैंड्रिक्स की शानदार 117 रन से सेंचुरी। वेंडरसन ने 66 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन स्कोर किए थे। प्रोटीज को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी मिल गई। हारिस रऊफ सबसे महंगे बॉलर, 4 ओवर्स में 57 रन दे दिए। जहादात खान ने 2 और अब्बास आफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। आखिरी मैच आईसीसी वर्ल्ड कप में खेला था। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 T20 खेले। तीनों फॉर्मेट में 271 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर का कहना था कि ये एक मुश्किल फैसला, लेकिन नई नस्ल और पाकिस्तान क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का सही वक्त है। हमारे नौजवान बासलाहियत और मेहनती हैं। नौजवानों की तरक्की के लिए मुतादिद प्रोग्राम जारी हैं। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह का खेलों की तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। पीटीआई ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों से बखूबी आगाह हो चुके हैं। मार्शल लॉ क्यों लगाया? जनूबी कोरिया के सदर को घर भेज दिया गया। वजीर आजम कायम मकाम सदर मुकर्रर यून सुक के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक मंजूर। सदर को मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर मफाख़ज़े की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। तमाम सदारती इख्तियारात मुअत्तल। जनूबी कोरियन पार्लियामेंट 180 दिन में फैसला करेगी कि यून सुक को ओहदे पर बरकरार रखना है या बरतरफ कर दिया जाए। दुनिया का बदतरीन कत्ल गारत, इजरायली दहशतगर्द आपे से बाहर। गजा के अस्पतालों और पनाह गुजीन कैंप मुसलसल निशाना। नसीरात में सहूनी फजाइया के 35 अफराद की जान ले ली, 50 जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा, अशिया खुरनोश और अद्वियात की फराहमी भी नामुमकिन बना दी। रमला में 3 बच्चे गिरफ्तार। मजमूई शहादतों की तादाद 44,835 हो गई। नाजायज रियासत के खूनी हथकंडे, दुनिया भर में लोग सरापा एहतजाज। उर्दन और यमन में गजा से इज़हार यकजहती और इजराइल के खिलाफ हजारों अफराद के मुजाहिरे। इजराइल पर हमले जारी रखने के आज़म नेतन्याहू के खिलाफ उनके हम वतनों का भी एहतजाज। अमरीकी कौंसल खाने के बाहर मुजाहिरे। यूक्रेन जंग पागलपन खत्म होनी चाहिए। अमरीका का नेटो से इनखला मुमकिन। नौमुंतखब अमरीकी सदर कहते हैं यूक्रेनी सदर रूस के साथ जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात करें। अमरीकी अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। वाशिंगटन खित्ते में मजीद अफवाज, बहरी जहाज और जंगी तैयारे भेज सकता है। घर का मुहाफिज ही गैरत के नाम पर कातिल बन गया। नौशहरा में भाई ने 17 साला बहन को फांसी दे दी। मुलजिम बहन पर तशद्दुद भी करता रहा। यासीन ने मकतूला की लाश दफना दी और फरार हो गया। वालदा की मुद्दयत में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई। पुलिस वाक़े की तफ्तीश में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। पारा चनार से हंगू पिशावर आमदोरफ्त के रास्ते 2 माह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। अशियाए खुर्दनोश, अद्वियात, गैस सिलेंडर समेत दीगर चीजों की सख्त किल्लत। टीएमए मुलाजमीन कई माह से तनख्वाहों से महरूम। मसीही बरादरी एहतजाज करने पर मजबूर। कहीं गुर्बत तो कहीं हुकूमती लापरवाही। सिंध में तदरीसी अमल का बुरा हाल।
इंतजामी के बयानात फाइलों तक महदूद, रवा बरस बच्चों की बड़ी तादाद स्कूल छोड़ने पर मजबूर, तालीमी इमरजेंसी, कल बजट का 25% मुख्तस, सरकारी स्कूलों की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी, पानी, बिजली, वॉशरूम से चार दीवारी की सहूलतें नापैद। सिंध का सबसे बड़ा सरकारी जिना अस्पताल अदम तवज्जही का शिकार, तिब्बी और इंतजामी अमले का बहरान, इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों की जिंदगियों को खतरात। ICU के इंचार्ज डॉक्टर सद्दाम सालेह कहते हैं अस्पताल में 60 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, अमले की कमी के बायस सिर्फ 24 ही फाल हैं। सिंध हुकूमत के दावे धरे के धरे, कराची में सदर टाउन UC6 का बलोच पार्क तवज्जो का मरकज, पार्क चटियल मैदान में तब्दील, झूले, बेंचेस, घास सब गायब, मुख्तस बजट, करप्शन और नाअहली के बायस अदम तवज्जो की नजर। एंटी करप्शन लाहौर का CM पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक करप्ट अनासर के खिलाफ क्रैक डाउन, निजी सोसाइटी के अहदेदारान इरफान वट्टू और अदील गुज्जर की 3 अरब की करप्शन मंजर आम पर आ गई। निजी सोसाइटी का अहदेदार इरफान वट्टू बैरून मुल्क फरार होने में कामयाब, दूसरा गिरफ्तार। कराची एक्सपो सेंटर में कुतुब मेले की रौनकें उरूज पर, तीसरे रोज भी तुलबा और तालिबात समेत शहरियों की आमद जारी। मेले में 330 से ज्यादा स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज, तमाम मौज़ूआत पर किताबें मुनासिब दामों पर दस्तियाब। रवा साल तुर्की और लंदन के इदारे भी कुतुब मेले का हिस्सा हैं। अवाम हो जाएं तैयार, सर्द मौसम में बारिश का है इम्कान। महकमे मौसमियात ने 3 से 4 रोज तक मुल्क में बरसात की नवीद सुना दी। बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड रहेगी। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में कहर पड़ने की तवक्को। लाहौर में स्मॉग कम, सर्दी बढ़ गई। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने गर्म मलबूसात जेब तन किए। कोयटा में यकबस्ता मौसम, हन्ना झील में गवर्नर बलोचिस्तान कश्ती रानी चैंपियनशिप का इनेकाद। मुल्क भर से पुलिस, नेवी और वापदा समेत दीगर महकमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। सर्दी की परवाह किए बगैर झील में जीत के लिए खूब चप्पू चलाए। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाका जात अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ साथ मुनफरिद जायके और फलों के लिए भी मशहूर है। लोअर दीर के इलाके में माल्टों की फसल पककर तैयार हो गई। मिठास और खुशबू के लिए खास शोहरत, दरख्तों के साथ झूमते रस भरे माल्टों की मार्केट में सप्लाई जारी। इंसानी जिंदगी में पुरानी यादें ताज़ा। गुलैल बचपन में सभी ने की होगी इस्तेमाल। गुलैल निशानेबाजी और परिंदों के शिकार के लिए होती है बतौर हथियार। गांव देहात में आज भी बच्चे और जवान गुलैल हाथ में या गले में लटकाए नजर आते हैं। पाक भारत खवातीन में होगा अब टाकरा। विमेंस अंडर 19 एशिया कप का कल से मलेशिया में आगाज। रवायती हरीफ के खिलाफ पहले इम्तिहान से कबल कौमी टीम की बड़ी तैयारियां जारी। भरपूर प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। मुनफरिद असलूब और धीमे लहजे के शायर जॉन एलिया की आज 93वीं सालगिरह मनाई जा रही है। वस्ल हिज्र की तलखियों को मुनफरिद अंदाज से बयान करने वाले जॉन एलिया ने उर्दू अदब को एक नई जहत से रोशनास करवाया।